It's not about the superiority complex, but it's about being aware. I was literally laughing and joking before exam. Yeah. Other aspirants are looking at me like, oh my god, ये लड़की तो serious ही नहीं है exam के लिए. But actually that helped me stay calm in my exam. Mostly people don't even know what NLUs are. You have to compare it to IITs. Then you have to tell them it is the IITs of law. Everyone, welcome back to our CLAT YouTube channel. I am Prithviraj Ede, and today's podcast session is going to be super duper valuable for every CLAT aspirants out there. Today, we have two amazing guests with us. Krupa, who has been selected into Maharashtra National Law University Nagpur through CLAT 2026, and Swara, who has selected in Maharashtra National Law University Mumbai through CLAT 2026. Both of them have successfully gone through the CLAT journey, and in this podcast, we'll breaking down their strategies, mistakes that they have avoided, and what actually makes if you are aiming for a top NLE. So yeah, if you are serious about CLAT, make sure you watch till end. Krupa, Swara, welcome to CLAT AI. Great to have you both there. Hello. Thank you. Hi everyone. Okay. Hi. So before we jump into strategies and preparation, I just want to start with something simple. Tell us a bit about yourself. From where did you belong? Where did you have done your schooling and all? Okay, should I go first, Swara? Yeah, sure. Yeah. So I'm Krupa, as I told you, and hello again to everyone watching. So I'm from Nanded, Maharashtra. To be specific, a small town in Maharashtra. I've done my school from a local dummy school, and actually my stream was science in 11th, 12th. So yeah, that's me. Okay, Swara. So starting with me, hi everyone, I'm Swara, and a huge thanks to CLAT AI for having me here. Hi Prithviraj, hi Krupa, hi viewers. So going with the flow, I'm from Yatmal, Maharashtra. Originally from Ghatanji, it's a taluka in Yatmal. So I have done my 10th and 12th in Ghatanji only. My stream was science, and it was a shift from science to CLAT. Usually humanities is something that is preferred, but it didn't make a change for me. So this is it. There's a trend going on nowadays, like science students coming to CLAT. Yeah. Even I also belong to science stream. Okay, Oh. guys. What made you choose law? क्या पहले से ही आपका CLAT प्लान था या फिर कुछ बाद में चेंज किया? No. No, as a matter of fact, I didn't even know about CLAT until my 12th. So my original goal was like doing something in English literature up to 10th. But after 10th, जब रिजल्ट आया तब सब लोग यहाँ पे नीट देते हैं. So it's like a neat prominent area, neat or JEE. So I kind of got attracted to that. And मैंने भी नीट देने का सोचा, and I gave 11th 12th for my NEET. First attempt दिया 12th के बाद, I mean 12th के end में, but after that I just didn't feel like myself in that stream. I just thought something is missing. I wanted to feel like myself, and this law field just was so interesting for me. I felt at home in this field, so I thought I do not want to be someone else's home my whole life. So you can say I came back to my home. Like it's done like white coat turning into black coat. Yeah, that is very well said. Yeah. And Swara, what about you? About me, I, from the very starting, enjoy different perspectives, different point of views, and various opinions and how an argument is made. Not in any professional setup, but in any regular daily things, daily basic things. I enjoyed why that person is saying this thing and how it is framed, what is the logic behind this. All these details fascinated me a lot. And when I found out about CLAT in the end of my 10th, CLAT was never the original OG plan that I am going to do this. But when I got to know about it, I was so sure that this is something I want to pursue my career in. And now I'm happily sitting at the seat in Maharashtra National University. That's great, guys. मतलब आप दोनों का सिलेक्शन, इवन इनफैक्ट हम तीनों का सिलेक्शन एक प्रेस्टिजियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ. दैट्स मतलब सच्ची में ये बहुत बड़ी बात है. Yeah, we should proud. Yes. और मतलब ये तो अभी ऐसा होता है ना कि 10th के बाद बस बच्चों को करियर ऑप्शन ही नहीं मालूम. लाइक उनको बस Right. जी. Exposure बहुत कम है. Yeah, Usually when you tell people about CLAT, right? Yes. sorry, I was saying that when you tell people about CLAT, what it is, they usually confuse it with CAT or some other exam. You have to explain it to them that it is a law entrance exam to the prestigious National Law University.
mostly people don't even know what NLUs are. You have to compare it to IITs. Then you have to tell them it is the IITs of law. NLUs are the IITs of law. I myself didn't know what CLAT was or what NLUs were until I completed my 12th. I got to know CLAT through an advertisement actually, and that I clicked on that advertisement, and hence my journey began. Actually, there's a perception in minds that of people that कि अगर जो कुछ नहीं कर पाता वो लॉ कर देता है, especially in Marathwada region. Exactly, yeah. I have gone through that many times, yeah. I and Krupa belongs to Marathwada region only. यहाँ तो एक ही चलता है, either you do NEET or you do JEE. इसके बाहर कुछ People give सोचना ही नहीं you है. very I want to judgmental. put it in a single sentence, which is the well-aware minds are aware with what law is and what potential it holds. So mostly people in the remote region, like you live in Nanded, you live in Marathwada, I live in Vidarbha. So things is like you cannot explain even a simple and every single thing to people. So they're just not well aware, and that's why they have this perception that the failures are towards law, but they don't know lawyers and politicians and those who are in the system are running the country. Yeah, very well said. अभी आप लोग बताओ कि मतलब when did you actually start your CLAT preparation seriously? Okay, so for the word, I started my preparation from 2025 January, but my actual preparation started in you can say late June or July, because I wasn't actually taking it seriously. Although looking back, I think I should have taken it seriously from the start, but yeah, I just didn't, and my preparation began in June and July. So after that, I prepared from that month. क्या आप लोगों ने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी किया? Yeah, My- I had a coaching, but I must say that self study plays an important role क्योंकि तुम कितना भी कोचिंग के भरोसे रहोगे वो आपको मटेरियल्स देंगे स्ट्रक्चर देंगे बट आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा they will serve the same platter to everyone every student but you have to choose out of it what you can divest and what works the best for you have to make your strategy you have to have your tasks and work accordingly. There's a myth in the So- CLAT aspirant that अगर कोचिंग ही लेते हो तब भी आपका CLAT निकलेगा. एक्चुअली मैंने जब क्लैट 2025 का पेपर देखा खुद एंड मैंने जब पेपर खुद से सॉल्व किया बिफोर स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन मैंने ये देखा कि इसमें कोचिंग लेने जैसा कुछ है नहीं लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस यू नो Yeah. So I didn't see the point in joining in a coaching. So I decided to self-study, and I think yeah, it worked out well. Although a mentor would have been good, but yeah, coaching isn't necessary. You can opt for a mentor if you really want it, but it's okay if you don't have a coaching. Self-study and self-practice is the most important thing here. And let me tell you guys, Right. CLAT AI platform बनाए इसी के लिए है. Like students को लगता Yeah, है you कि- can opt for different services and mentorship sessions there Yeah. with a very minimal fees. And it was great. I've seen those things. Mentors, yeah. Compared to the other And just coachings, not all your doubt. compared to the other coachings, CLAT AI platform is the lifesaver for CLAT aspirant. Like आप Yes. कभी भी 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हैं इस पर आपने. जैसे बाकी कोचिंग्स में कैसे आज डाउट डाला तो 24 आवर्स के बाद हमें कभी कभी रिप्लाई मिलता है. तब तक डाउट क्या था वही भूल जाते हैं स्टूडेंट्स. कोचिंग्स में पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलती आप क्लैट ऐप पे पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो व्हिच इज वेरी गुड राइट. और एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि many students are confused when they are starting. Like what would you suggest to do there in first starting 2 months? ओके स्टार्टिंग में So should I start? Okay. ओके Okay, go. ओके Okay. आई थिंक स्टार्टिंग में यू शुड पिक अ मॉक टेस्ट और अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व इट एंड टेस्ट योर एबिलिटी कि आप अभी के लिए कहाँ स्टैंड करते हो आप में कमियां क्या है आप में स्ट्रेंथ्स क्या है पहले ये फिगर आउट करो एंड देन स्टार्ट योर जर्नी सो फॉर एग्जांपल इफ योर इंग्लिश इज स्ट्रांग you can just continue practicing English, right? If your GK is weak, then you can search for options and materials which will suit you. So overall thing is कि पहले अपने strengths and जो भी कमियां हैं आप में वो ढूंढ लो, yeah, and then work on that. And yeah, main thing is don't look at what others are doing. Do what suits you. This is the main thing. Yeah. Actually. Sora, what's your opinion on this? I would like to put it in this way. Starting में you have to focus heavily on newspapers. It will improve your comprehension and current awareness. Because आप school से start कर रहे हो यहाँ पे, you study about political science and history, but that's not what
CLAT asks for. The current affairs section is very vast in CLAT, and I think you need to start it from the day one. So starting में you have to analyze, you have to understand the paper pattern. अगर आप ये सोचोगे नहीं, ये अच्छा सब्जेक्ट है, हो जाएगा ये and वो, it's not going to work like that. You have to understand किस चीज में क्या डिमांड करता है, and you have to then work according to it and what suits for you. Yeah, I would like to add something here. So we started our preparation after 12th, right? But there are many students who decide on CLAT when they are in 10th. So वो लोग 11th से preparation start करते हैं. So उनके लिए मेरी advice ये रहेगी कि आप 11th में पेपर की स्टडी करने से ज्यादा आप रीडिंग में फोकस करो. Because मेरी Right. पर्सनल हॉबी है नॉवेल्स रीडिंग, सो दैट हेल्प मी अ लॉट. सो अगर एक नॉवेल्स रीड करने की हॉबी डेवलप कर लो तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेंगे एंड लॉजिकल, लीगल एंड इंग्लिश तीनों सेक्शंस आपके हो जाएंगे अगर आप रीडिंग पे फोकस करो इन द फर्स्ट ईयर. Reading comprehension plays a huge role in that, and for that मैंने एक बुक की हेल्प ली थी which is Word Power Made Easy. तो स्टार्टिंग में आप वो रेफर कर सकते हो. It works like magic, so it is highly recommended. यस. मतलब अभी ऐसा है क्या कि क्लैट के लिए आपको 2 साल के लिए टाइम लगता है, या फिर आप 1 साल में भी कर सकते हो, या 6 महीने में भी? क्योंकि बच्चों को लगता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स 10 के बाद ही स्टार्ट करते हैं, और मेरे जैसे बच्चे जिसने 12 के बाद स्टार्ट किया था क्लैट प्रिपरेशन करने, इनफैक्ट मीन्स 12 बोर्ड्स के बाद स्टार्ट किया था, तो ऐसे परसेप्शन बन जाता है कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं इन सबसे. एक फियर होता It है, depends होता है. on okay. I was saying it depends on your career clarity. If you know from 10 that you have to go in this direction, you can start from 10th only. It will be beneficial only. So अगर आप 11th में start कर रहे हो after 10th, तो starting में तो पूरा focus concepts पे रखो. Learn important legal doctrines and legal concepts. For example, tort होगा, family होगा, criminal, constitutional. उसमें अपना जो grip है वो strong कर लो. And then for this, like in 12th, you can devote your whole time to current affairs and practice. Mocks करो, उसका analysis करो, and don't just ऐसे डरो मत कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, I don't know anything, मैं mocks के लिए कैसे बैठूं? तुम just start करो, and the most important part is हर mock का analysis करो. वरना it's not worth it. तो आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि जस्ट 3 months बचे हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो होगा या नहीं. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने लिटरली 2 और 3 months के प्रिपरेशन से भी क्लैट क्रैक कर लिया है और दे आर इन अ वेरी प्रेस्टिजियस एनएलयूज. So don't think you're falling behind. You can start now whenever you want, and you'll go there. It's a race, but still, it's not like NEET and JEE. There is a vast syllabus, and you have to complete it. It's not like that. So CLAT is ability based, right? So if you have the ability, you can. I would go further and say that you can even crack it in 1 month. So yeah, all the best. Let's get deep dive into each sections. Like आप लोगों ने इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इंग्लिश के लिए? Okay, for me, I mentioned that I read novels. It's my hobby. So मैं बचपन से ही reading करती आ रही हूँ. So English के लिए मुझे खास preparation कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं because my comprehension was good because of all the books I read. So yeah, English के लिए I did nothing, just went on practicing. I will say कि read newspapers daily. बहुत important है. Start from the day one. Newspaper read करो. There are two, The Hindu और Indian Express. मैंने The Hindu के लिए opt किया था. उसका editorial section, text and context, do read them daily. It will increase your awareness as well as the comprehension. Word Power Made Easy and हर चीज solve करो. Tone, words, vocabulary, figure of speech. इसमें अपने grip starting में ही पक्की बना लो, so that when you are practicing and giving mocks rigorously, तो आपको उसमें problem ना आए कि silly mistakes ना हो. Yeah, मतलब न्यूज़पेपर रीड करना डेली इम्पोर्टेंट ही होता है. ये it is. बहुत. बिकॉज वो आपके तीनों सेक्शंस में हेल्प करेगा. नो, इवन 4 सेक्शंस, क्यूटी छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस में हेल्प Yeah. करेगा. अभी उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस दोगे, मतलब जिनको पढ़ने की आदत नहीं है, राइट? रीडिंग उनकी हैबिट नहीं है, तो वो हैबिट कैसे बिल्डअप करें? इनफैक्ट ओके, इट स्टार्टिंग में डेवलप्स मुझे ग्रेजुअली. रीडिंग की हैबिट नहीं थी, तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैंने स्विच किया था नीट से क्लैट तक, तो मुझे फिर से लगा कुछ गलत करियर तो नहीं चूज कर लिया मैंने,
क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी रीडिंग करने की, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो एग्जैक्टली अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो नॉन रीडर्स हैं उनके लिए हार्ड होगा, बस इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट होते हैं, न्यूज सेक्शन होते हैं न्यूज़पेपर में, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा है कि बहुत सारी टर्म्स होती है लीगल एंड बहुत पॉलिटिकल टर्म्स भी होती है न्यूज़पेपर में, तो फॉर दैट यू कैन सी न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। एंड वंस यू डेवलप द इंटरेस्ट इन द टॉपिक यू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, तो रीडिंग इजी हो जाएगा अगर आपको टॉपिक भी क्लियर है। तो एक तीर से दो निशान है, करंट अफेयर्स Yeah. भी एंड इंग्लिश भी। यानी I would like to add here is कि आप फर्स्ट डे पे पूरा एडिटोरियल सेक्शन खत्म नहीं कर पाओगे अगर आप एक नॉन रीडर हो। या ऐसे करना कि सिर्फ एक सेक्शन पढ़ो, एक आर्टिकल पढ़ो, मे बी नेक्स्ट डे एक और आर्टिकल पढ़ लो। सो स्टार्ट ग्रेजुअली, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल सेक्शंस, देन गो ऑन टू रीडिंग बिगर हाँ, आर्टिकल्स। एंड डोंट वरी इफ टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। You can't understand articles on the first day or even in the first months. It will take time. यानी You have to have patience. यानी न्यूज़पेपर पढ़ना एक तीर से चार निशाने लगने जैसा है, चारों सेक्शन में यूजफुल होता है, हाँ right. राइट? ओके, एंड व्हाट स्ट्रेटजी डू यू गाइस यूज इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन? Actually, the same I mentioned in English. My comprehension was good, so I started practicing logical, and I practiced daily. Logical was my daily practicing thing. So yeah, that helped me. लॉजिकल एंड As far as इंग्लिश कंपैरेटिवली देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन same here. Yeah, that's why. Yeah. लॉजिकल में हमें मेन थीम या फिर ये अजम्पशन वगैरह फाइंड आउट करना होता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो Assumption. जाते हैं। आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को? क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट को जब आप समझ जाते हो तो आधी चीजें वहां पे ही ये हो जाती है। द जस्ट इज इम्पोर्टेंट, ऑथर क्या कहना चाहता है। डोंट अगर ऑथर बोल रहा है कि मेरे को एप्पल जूस पसंद नहीं है, तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू ऑथर। यू कैन नॉट थिंक कि ओ इसके ये रीजंस होंगे वो रीजंस होंगे। जो डेटा दिया है, जो बोला है ऑथर ने, उस पर फोकस करो एंड आधा गेम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। then look at the question frames, what the question is asking for, फिर वहां से लॉजिक बिल्डअप होता है। एंड अगर गलत हो रहा है तो लुक एट द रीजनिंग। इट्स नॉट अबाउट हैविंग द राइट आंसर्स, इट्स अबाउट कि आप गलत किया है तो आप राइट आंसर समझ रहे हो, राइट रीजनिंग समझ रहे हो। इफ यू हैव दैट माइंडसेट ना, रीजनिंग वाला, थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। मतलब आपको लॉजिकल सेक्शन के लिए उस आर्टिकल के अदर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द अदर शूज एंड देन रीड द आर्टिकल, so you'll Yeah. just know the essence of that article better then. डोंट पुट योर इंफॉर्मेशन एंड योर लॉजिक इन इट। एंड आप लोगों का क्या व्यू है एनालिटिकल रीजनिंग का लेकर? लाइक इस साल तो क्लैड में थैंक्स टू कंसोर्टियम दिस ईयर, थैंक्स टू कंसोर्टियम दिस ईयर, बूम। अचानक से Actually, लॉजिकल की जगह पूरा का analytical- पूरा उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन डाल दिया। Honestly, I can't Right. really complain about that because analytical मैंने practice नहीं करी थी या study भी नहीं करी थी, but I could solve it. Maybe because I gave scholarship exams in A standard, 4th standard. So I don't know. I could solve it. So I can't give much advice on that. Maybe Swara could put some light on it. Yeah, look, the thing is not कि the level of questions or something, but it is about the क्या order रखा है आपने। अगर आप गूगली फेंकोगे पेपर में तो आप इमेजिन करो कि जब वो बच्चा सॉल्व कर रहा है तो उसका क्या मेंटल पीस रहेगा वो टाइम पे कि ही इज सॉल्विंग अ पेपर एंड इट डिपेंड, उसका 2 साल 1 साल कितना भी महीना उसका करियर डिपेंड करता है उस पे। एंड ही इज सॉल्विंग एंड ही इज सेइंग आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, दिस वाज नॉट इवन मेंशन्ड इन द पैटर्न। लाइक हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते थे, बट अगर आप लॉजिकल को एनालिटिकल में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। बट या इट वाज नेग्लिजिबल काइंड ऑफ, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो। जिन्होंने एलेट के लिए प्रिपेयर किया था उनके लिए बहुत इजी था, बट हाँ इट्स काइंड ऑफ panic thing in the exam center thing. I think it was unfair for them to put analytical in the paper, but you can't complain actually because our whole field is very unpredictable. You have to be ready for it, Right. every situation, right? So हाँ, even though it was unfair, you just can't complain. Okay, means it will be better if you start preparing analytical reasoning from Yeah. starting only, right? yeah, but in CLAT you prepare for analytical बहुत थोड़ा सा। तो जो लोग एलेट के लिए करते हैं उनके लिए एक ग्रिप होती है उस चीज। ऑलमोस्ट मतलब सारे एस्पिरेंट्स क्लैट एंड एलिट देते हैं। अगर स्टार्टिंग से वो एनालिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर करते हैं तो दोनों एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, लाइक क्लैट एज वेल एज एलिट आल्सो। इनफैक्ट अदर लॉ एग्जाम्स के लिए भी वो यूजफुल होगा, जैसे एमएचसीटी में तो पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग है, राइट? एंड आप Right. लोगों की क्या एडवाइस रहेगी? लाइक देखो, तुम तो ये मेंटेलिटी से कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग आता है सिलेबस में,
पेपर देखा तो पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग आया था। इनफैक्ट जब मैं सॉल्व कर रहा था पेपर, मैंने इंग्लिश स्टार्टिंग में ये किया था, इंग्लिश किया था, हाफ किया था इंग्लिश, देन जीके किया था। उसके बाद आई मूव टू लॉजिकल रीजनिंग। वहां पर देखा तो पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग का पेपर आया था। ऐसा लगा कि मतलब पूरा मेरा पेपर हाथ से गया। थैंक्स टू गॉड, मतलब मैंने जल्दी से फिर नेक्स्ट सेक्शन पर स्विच किया। लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने, मैंने देखा कि इनफैक्ट मेरे ही फ्रेंड वो उसी लॉजिकल सेक्शन पर अटक के रह गए और उनका सिलेक्शन होते हुए भी उनका नहीं हुआ। ओके, सो मेरी एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब आप एक पैटर्न बना लेना कि आप पहले इंग्लिश सॉल्व करोगे या लॉजिकल सॉल्व करोगे, देन क्यूटी, वॉट एवर सूट्स यू। मतलब आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, जो आपका टाइम सेव कर रहा है, वो पैटर्न बना लेना कि कौन सा सेक्शन आप पहले सॉल्व करोगे एंड कंटिन्यू दैट टिल द लास्ट डेट। लाइक अगर आपका फ्रेंड कोई अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है तो डोंट स्विच ऑन दैट। Yeah, just do what you're doing till the last day, till the main exam. That will help you immensely, I'm sure. मतलब अचानक से टाइम एग्जाम में अगर मैनेजमेंट कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। Yeah. अचानक से एग्जाम में अगर कुछ प्लॉट ट्विस्ट आया तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? I think इसके coaches पास इसके लिए prepare मैंने for सोचा that, था और right? सॉरी। yeah, they do, but the mocks are different from the final paper because mocks don't decide your career. So the psychology behind this thing is, जिसमें मेरा हुआ था, I was quite disappointed after the paper. In the paper, I didn't panic. Thanks to God, I don't know which power helped me. But this happened. जब लास्ट में एक जो सेट था उसमें अरेंजमेंट थी एंड आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसके इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें दिमाग पुट कर रहे हो कि कौन सा लॉजिक आपके लिए अप्लाई हो रहा है। मे बी आपने बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे पास में, बट वहां पे डिपेंड करता है। तो कीप योरसेल्फ काम एंड एग्जाम के दिन ये सोच के मत जाना कि मुझे डबल डिजिट रैंक चाहिए, ट्रिपल डिजिट रैंक चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए। डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि ओ मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे उसके लिए प्रिपेयर उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। बट एग्जाम डे पे अगर आप ये सोचोगे ओ मुझे करना ही है, लेजिट वॉकिंग थ्रू माय फेवरेट एनएलयू गेट, एंड अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो ना तो दैट्स काइंड ऑफ ड्रॉबैक, बिकॉज इट विल क्रिएट द प्रेशर कि आपको करना ही है। एंड अगर ऐसा कुछ डिफरेंस हो जाता है इन द लास्ट मोमेंट तो it will create panic situation. So don't you cannot afford this. इवन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू दिस। मतलब अगर आप मेडिटेशन की आदत लगाते हो तो ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। That's true. क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, That's very true. या मेरे मेंटर्स ने कहा था कि तुम्हें मेडिटेशन करना है मॉक से पहले हर दिन। मैंने लगभग 1-1.5 महीना मैंने मॉक से पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया था। और इनफैक्ट मेरे मेंटर ने ये भी कहा था कि जब आप एग्जाम दे जाओगे, एग्जाम हॉल में भी आपको मेडिटेशन करना है पेपर से पहले। मैं गया था, मेडिटेशन कर रहा था हॉल में, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। आई वाज लाइक थोड़ी ना मुझे इनसे बार बार मिलना है मुझे मेरा पेपर देखना है, मेरा फ्यूचर देखना है। इनफैक्ट कुछ बच्चे इन्विजिलेटर के साथ टाइम वेस्ट करते हैं 10-10 मिनट। इन्विजिलेटर आता है कहीं पर साइन करने के लिए, कहीं पर नेम्स वगैरह ढूंढने के लिए, तो उसमें टाइम चला जाता है। मेरा ऐसा था, आओ क्या चाहिए साइन करो, और फिर मैं इंस्टेंटली अपना पेपर सॉल्व कर देता। यानी पूरा फोकस आपका पेपर पे रहना चाहिए, एंड मेडिटेशन हेल्प करता है इस चीज के लिए। तो Yeah. ऑल्सो इसमें एक चीज मुझे याद आई कि मोस्टली लोग ना अगर मॉक्स दे रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल्ड है तो वो ऑनलाइन देते हैं, तो पहले से ओएमआर शीट पे मॉक्स देने की आदत डाल लो, क्योंकि बबल्स फिल करने में टाइम जाता है। ऑल्सो आपका कितनी लाइक एक्यूरेसी है उसमें, क्या आपका अच्छे से कर रहे हो आप फिल। ऑल्सो डिटेल्स में भी टाइम लगता है, आपको एक्स्ट्रा से टाइम नहीं मिलता है, वो 2 घंटों में ही आपको पूरा डिटेल फिल करना रहता है। तो बबल्स भरने की आदत डाल लो, और हाँ ऊपर नीचे मत करना क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने किया था एक्चुअली एग्जाम में, मेरे 5 बबल्स ऊपर नीचे हुए थे, बट या व्हाट्स यूज क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क। या ने अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं, जो कि जीके माना जाता है सबसे वास्ट सेक्शन। बहुत बड़ा। क्या एडवाइस रहेगी आपकी? ओके, सो पहले तो डरो मत इस सेक्शन से, इट्स ओके, आई एश्योर यू हो जाएगा। हाँ, सो जीके के लिए एक आप पहले अपना मटेरियल सॉर्ट आउट करो, क्योंकि थिंग इज बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन एंड एवरीवेयर, 10 तरह के कंपेंडियम्स, कोचिंग लेक्चर्स एंड ऑल। पहले आप बस अपना मटेरियल्स फिक्स करो एंड उस पर चलते रहो। यू कांट थिंक कि आपका फ्रेंड कोई और कंपेंडियम रेफर कर रहा है तो उसको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इट्स नथिंग लाइक दैट, आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। अब मैंने नोटिस किया है कि जीके सेक्शन में फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत होता है, इसलिए सारे बच्चे बहुत रेफर करने का देखते हैं। हाँ, ये मत करो, बस फिक्स मटेरियल
इंटरेस्ट आप रखो एंड उसको प्लीज डेली करना, लाइक उसका कंसिस्टेंटली करो, आप उसको बिल्डअप मत होने दो। सो आपको इट्स मतलब हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो। Actually, what students did, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, ठीक है। actually what student does ना कि मतलब टेलीग्राम से कुछ मटेरियल उठा लिया, ये कोचिंग से कुछ Yeah. मटेरियल उठा लिया, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। वो पूरा मतलब मटेरियल कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर एक टॉपिक 1000 मटेरियल से पढ़ेंगे, 1000 सोर्सेस फॉलो करेंगे। उससे अच्छा आप एक सोर्सेस पर स्टिक करो और 1000 टॉपिक्स पढ़ो। Yeah, I did this actually. My preparation phase में मैंने I think 4 times अपने materials change किए and after exam I realized that it was a bad thing to do. But yeah, you should not do that mistake. या किसी एक सेक्शन पर अगर आप स्टिक करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। एंड इनफैक्ट गाइस मतलब लास्ट ईयर 2026 में मतलब जब हमने क्लैट दिया था, हमारे मेरे दोस्तों का ग्रुप था, तो मैंने एग्जाम के एक हफ्ते पहले प्रेडिक्ट किए थे 5 टॉपिक्स। मैंने कहा था कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 5 टॉपिक्स आएंगे, और पता नहीं कैसे लेकिन 4 टॉपिक्स एग्जैक्टली पेपर में आए थे। वो बस मैंने वर्क अमेंडमेंट के लिए प्रेडिक्ट किया था, वो नहीं आया था, उसकी जगह H1B वीजा आया। अगर आप लोगों को भी अगर राइट, ऐसे कुछ आपको लास्ट कंटिन्यू अगर आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसे ही प्रेडिक्शंस करना हो, यानी प्रेडिक्शंस ऐसे नहीं कि तुक्का लगा दिया जाए, ये प्रेडिक्शन होता है पूरा स्टडी के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर। तो आप वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो क्लैट AI के ऊपर मेंटर्स के लिए। राइट, आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम लाइक इन नवंबर एंडिंग में बहुत सारे MITs सर्कुलेट होते हुए दिखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देयर विल बी सम 105 और 150 MITs। बट अगर आप अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस की आपको नोट्स भी बनाना है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो वो जब आप ओपन करके देखोगे, यू विल सी द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, कौन से एंगल से, कौन से लीगल एंगल से, करंट अफेयर्स के हिसाब से कौन से रिपीट हुए हैं एंड किसके आने की शक्यता संभावना है। क्योंकि आप जब PYQs भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कंसोर्शियम किस माइंड से पेपर बनाता है, तो उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करना तो इजी हो जाता है अगर आप थ्रू आउट द होल ईयर लॉयल रहे हो करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप थ्रू आउट होल ईयर आपके न्यूज़पेपर एंड मटेरियल पे लॉयल रहोगे तो ये जो लास्ट में MITs आते हैं ना, आपको उनकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो एंड बिलीव करो कि वो हो जाएगा उसी प्रिपरेशन से, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। Okay. Now let's move on to last section, QT। अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं ये QT। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट तक QT स्किप कर दिया था। क्या एडवाइस रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए QT के लिए? ओके, QT के लिए तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, एंड जैसे सब सब्जेक्ट्स के लिए फ्रॉम द डे वन आपको डेली 2-3 DI केस लिस्ट लगानी ही पड़ेगी आपको अपने, क्योंकि देखो इजी है, मैनेजेबल है, बट इट आस्क्स फॉर योर एफर्ट्स एंड डेली एफर्ट्स। तो आप ऐसे ये नहीं कर सकते कि ओ मैं वीक में एक दिन कर लूंगा, ऐसा मत करो, डेली कुछ रखो। और फॉर मी, मैं ना टास्क बनाती थी, मेरा ऐसा नहीं था कि ऑल, तो मैं अपने टास्क में QT के लिए अलग सेक्शन बनाती थी, उसमें टास्क देती थी कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, लेट इट बी रेशियो, लेट इट बी परसेंटेज, एनीथिंग, तो उसके हिसाब से आप मैनेज करो। मेरी गलती ये थी कि मैंने अवॉइड किया उसको बहुत ज्यादा, बट दिस इज हाईली मतलब एक अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से कि डोंट अवॉइड इट, क्योंकि QT से रैंक डिसाइड होती है आपकी। जो फाइनल चीज होती है ना, जो फाइनल एक शॉट होता है, दैट इज QT, तो उसको अवॉइड मत करो एंड स्टार्टिंग से ही दो उसको। हाँ, स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करो, बट उससे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। देखो जो टॉपिक्स क्लैट में आते हैं दे आर नॉट वेरी हार्ड, राइट? द बेसिक लेवल मैथमेटिक्स, 10th लेवल मैथमेटिक्स। सो अगर आप इवन इफ आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो, फिर भी आप उसको अंडरस्टैंड कर ले सकते हो। सो आप यूट्यूब लेक्चर्स रेफर कर सकते हो या आपके कोचिंग के लेक्चर्स, या सिर्फ बस कंसेप्ट्स क्लियर कर लो एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपको फर्स्ट मंथ में सारे क्वेश्चंस ना बन पाए, हो सकता है सेकंड मंथ में भी ना बन पाए, बस कंसिस्टेंट रहो, एक एग्जाम तक आप कर लोगे, इट्स ओके। सो या there's nothing to fear. What students actually thinks that कि QT कम मार्क्स का आता है, छोड़ देते हैं उसके लिए, बाकी सेक्शन पर फोकस कर लेंगे। Biggest mistake, yeah. हाँ नहीं, वो 12 मार्क आपका डिसाइड करता है आफ्टर। एक्चुअली मतलब QT तो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। बच्चों को लगता है 12 मार्क्स जान दो, छोड़ देते हैं वो, हम बाकी सेक्शन में आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे। And this is exactly what puts you way ahead of others, right? क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे, बट आप अगर डिफरेंट सोच के वो कर लो तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना, आप आगे रहोगे सब। अच्छा हाँ,
Right. Okay. And was there a fixed routine or daily routine types that you guys follow? Okay, there was a routine, but I didn't follow it. It's the story of every aspirant over there. Yeah, I was very inconsistent actually. But yeah, I do not advise you to do that. If you become, look, you do not have to follow a very strict routine. And yeah, routine in the sense not your daily routine, just your study routine कि आपको दिन में क्या टास्क करने हैं. ओके आप 2 आवर्स पढ़ो 3 आवर्स पढ़ो इट्स ओके बस आप डिसाइड कर लो कि आपको उस दिन में क्या टास्क करने हैं एंड वो टास्क कंप्लीट करो इट्स ओके अगर आप बाकी के दिन कुछ भी करो बस ये टास्क कंप्लीट कर लो एंड यू विल बी फ्री ना सो आपको वो प्रेशर नहीं बना रहेगा कि मुझे स्ट्रिक्ट डेली रूटीन फॉलो करना है जस्ट फॉलो योर डेली टास्क कंसिस्टेंटली या I will say आवर्स पे डिपेंड नहीं करता है आप कितने घंटे पढ़ रहे हो सकता है कोई 6 पढ़ रहा है कोई 8 पढ़ रहा है बट अगर आप उसको एफिशिएंटली नहीं कर रहे हो प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हो तो इट्स वेस्ट मेरे लिए वर्क ये करता था कि मैं टास्क बनाती थी हर सब्जेक्ट का हर सेक्शन का तो वो मैं ये डिसाइड करके चलती थी कि एट एंड ऑफ द डे मुझे ये कंप्लीट करने हैं एंड इट्स नॉट लाइक देखो इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट ऐसा नहीं है कि आपको इतना पढ़ना ही है डेली सारे इतने टास्क कंप्लीट करने ही है इवन इफ अगर कभी 1-2 टास्क रह रहा है पोस्टपोन इट बट डू इट इट्स नॉट कि अगर आप सोच रहे हो कि अरे आज तो मेरा 2 ही घंटा हुआ आज का दिन तो वेस्ट गया आई एम नॉट बीइंग लॉयल टू माय प्रिपरेशन ऐसा नहीं है बड़ा हाँ गिल्ट में मत रहना पता रखो खुद को अवेयर रखो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो टास्क में करो चीज है कि आपको सपोज आफ्टर स्पीच में सब कुछ क्लियर कर लेना है जीके में जो भी करंट लीगल अफेयर्स आया है या फिर जो ऑनगोइंग इश्यूज है उसका स्टैटिक एंगल पढ़ो क्विज़ेस में पार्ट लो तो ये सारा चीजें होनी चाहिए Krupa, what's your opinion on this? Yeah, same as Swara said. I do not have much to add on, but हाँ यही करते रहो कि आप like she said hours matter नहीं करते and genuinely they don't. Okay, आप अपने ability के हिसाब से decide करो कि how much time do you need to give for study. उतना ही टाइम करो बस डेली करो एंड मेन थिंग लाइक शी सेड कि अगर आप एक दिन नहीं कर पाए तो गिल्ट में मत चले जाना क्योंकि वो फिर आपके अगले दिन का जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट करेगा Yeah. सो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है एक दिन का वो अगले दिन का भी नुकसान होगा सो या अगर एक दिन मिस हो गया तो कुछ कोई बात नहीं है उसको निकाल दो दिमाग से एंड मूव ऑन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ पर डेली करो थोड़ा सा भी करोगे तो भी डेली करो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कल का मेरा मिस हुआ तो वो कल का करने के बहाने आज का भी नहीं कर पाता है वो। चक्कर में और वो गिल्ट हाँ। के बहाने मतलब पूरा इसलिए- डे वेस्टेड हो जाता है एंड आप क्या एक गोल्डन एडवाइस बताना चाहोगे मतलब व्हाट गाइस सेपरेटेड यू फ्रॉम अदर्स आपने क्या Okay, स्पेशल किया दूसरों yeah. एस्पिरेंट्स के अलावा Okay, so I notice a pattern that many students are very nervous on their exam day. Even I was. So if I have to give a golden advice, कि आपने इस साल भर प्रेपरेशन की है, बट साल भर के प्रेपरेशन से ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में कैसे परफॉर्म करो, राइट? वी ऑल नो दैट. सो ये मत सोचना कि आपका एग्जाम डे लुक इट्स द थिंग इज कि सबको लगता है क्लैट इज द लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम राइट बट टेल यू इट्स नॉट गाइस इट्स नॉट लाइक चिल एंड जस्ट एंजॉय योर प्रिपरेशन and think it like a fun game, you know? Yeah, take it like a fun race and give your exam with that attitude. So don't think कि oh my god मेरा क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा. Don't go on that because वो आपकी सारी प्रेपरेशन सारी मेहनत खराब कर देगा और फिर आप नर्वस रहोगे ना एग्जाम डे पे. Yeah, don't do that. Like personally, I was not nervous because someone gave me this advice and I took it. Even my parents gave me this advice. I was literally laughing and joking before exam. Other aspirants are looking at me like, oh my god, ये लड़की तो serious ही नहीं है exam के लिए. But actually that helped me stay calm in my exam. I will say be consistent. बहुत मैटर करती है कंसिस्टेंसी एंड प्रेशर लेके मत पढ़ो कि ओ इतना वास्ट है करंट अफेयर्स इतना डिटेल्ड है मैगजीन्स लीगल मैगजीन्स बहुत कुछ आपको जजमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे पास में जाना पड़ेगा सब कुछ डाइव करना पड़ेगा बट अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो इट विल बी वेरी इजी मेरा ये था कि करंट अफेयर्स में मैंने बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने दिया मुझे मजा आता था वो पढ़ने में मेरा जो उसकी तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था तो इट वाज लाइक ओ आई एम गेटिंग वेल अवेयर्ड बाय इट अगर मैं 4 लोगों में बैठी हूँ तो आई नो मोर टॉपिक्स it's not about the superiority complex but it's about being aware कि if you are stepping in some atmosphere
यू नो व्हाट इट इज, आप जान रहे हो अलग अलग चीजें दुनिया में क्या हो रही है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स कैसे होती है, सारी सारी चीजें। तो अवेयर रहने के लिए अगर पढ़ोगे एंड उसके साथ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो इट्स गोइंग टू वर्क फॉर श्योर। हाँ, कॉन्फिडेंट भी रहोगे ये सब करने से, सो दैट विल हेल्प यू स्टे काम। एक लाइन मैंने सुनी थी, एक फ्रेंड है काइंड ऑफ, ही इज ऑल इंडिया रैंक 19, so he said that you can choose two pains, the pain of discipline or the pain of regret, and it's really it's like very game changing अगर आप उसका डीप मीनिंग समझते हो। एक ही दिन 10 घंटा पढ़ने से अच्छा आप डेली 4-4 घंटे पढ़ो, राइट? इससे हाँ, कंसिस्टेंसी right. भी बने रहेगी और डेली शेड्यूल में भी आप फॉलो करते रहो। एंड गाइस, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वन क्लैट एस्पिरेंट शुड अवॉइड? like mistakes varied or aspirants do. एस्पिरेंट्स को मतलब क्या उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए सबसे बड़ी मिस्टेक? Okay, Swara, you go first. Okay, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी तो इट विल बी डोंट अवॉइड क्यूटी, बट इन अ जेनेरिक थिंग, आप यूजुअली क्या होता है अगर जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड है या फिर जो ऑनलाइन भी है बट दे आर वेरी एक्टिव इन उनका जो सर्कल है, जो पीयर ग्रुप है, तो दे स्टार्ट टू कंपेयर देयर मार्क्स, देयर रैंक, देयर स्टडी आवर्स, देयर मटेरियल। सोचते हैं कि ओ ये इंसान तो ये मटेरियल यूज कर रहा है, मे बी दैट्स बेटर, इसलिए उसके मार्क्स ज्यादा आ रहा है। सोचते हैं कि ओ इसने तो इतने मार्क्स के नंबर दे दिए। नंबर ऑफ मार्क्स, हाँ उसको हाई पे ही रखो, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना कि ओ 100 देना है, 150 देना है, बट अगर आप उसको एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हो कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। तो कंपेयर मत करो। पॉजिटिव कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, बट जब आप लोगों को पुट डाउन करने का ट्राई करते हो या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाने लगते हो, टॉक्सिक कंपेयर करने लगते हो, तो वो बहुत हजार्डियस होगा आपके लिए। हाँ, एंड मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्टार्टिंग, मेरी एडवाइस स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए रहेगी, बिकॉज दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड। मैं स्टार्टिंग में आई वाज काइंड ऑफ नर्वस कि इतना वास्ट सिलेबस कैसे होगा, एंड आई डिडंट हैव गुड मेंटरशिप। You guys might have good mentorship through Plat AI, but I didn't have it. तो वो था कि मैं डरती थी करंट अफेयर्स से, so मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली मैंने प्रिपेयर नहीं किया। बट तो वो मिस्टेक है, काफी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं आई थिंक मेरे साथ, राइट? सो वो मत करो, करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से प्लीज कंसिस्टेंटली करो। एंड मेरी मेन एडवाइस तो ऑलवेज ये रहेगी कि क्लैट को एक लाइफ, ये इट इज अ लाइफ चेंजिंग एग्जाम, बट आप उसको एनएलयू में जाने के बाद नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्लैट के अलावा यू कैन रीअटेम्प्ट, राइट? सेकंड अटेम्प्ट को काफी नेगेटिव नजरों से देखा जाता है in our field, right? But I don't think like that. I think second attempt is fine because you make mistakes in your first attempt. So if someone is a dropper here or a repeater, so please don't think that you are something less than other freshers. It's not like that. Just be confident in yourself, do it Right. consistently. Yeah, I think मेरा train का thoughts का train भटक गया, but yeah, that's my advice कि just be confident in yourself. So guys, any mistakes you personally regret, something that you might know earlier? Not having a mentor. Okay, उसी के लिए क्लैट AI एक I will प्लेटफॉर्म say- बनाया है। Plat AI, yeah, you guys will have Plat AI, so please choose a mentor and take for their mentorship. services, and of course वहाँ पे सारे एनएलयू वाले लोग बैठे हैं, दी दादा लोग, so they can help you a lot. And हाँ, Plat AI में genuinely very good mentors हैं, so you can refer to them. और आप लोगों ने हाँ, and I was saying about mistakes कि मेरा ये होता था, मेरा रिग्रेट ये है कि मैंने मॉक्स से डरना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, बट आधी जर्नी में मुझे समझ गया था कि अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। So it's not about starting the right way. I used to think, oh, I'm not prepared enough. How am I supposed to give a mock? Then my score will go down. Then I'll get demotivated. It's not like that. Don't think about the score in the first initial phase of your preparation. Just do it. उसको करो and current affairs के साथ loyal रहो भाई। And guys, how many marks did you give? आपने एनालिसिस कैसे किया उस मार्क्स का? क्योंकि बच्चे यही पर Okay, बैक so आउट करते thing हैं। is कि हाँ, मतलब मेरे वो- साथ ये होता था actually. Okay, Sorry, let me complete. you're not audible. Okay. मतलब बच्चे क्या करते हैं, मार्क्स तो देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते उसका। उसकी वजह से उनको लगता है मैं मार्क्स तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, एक स्टैग्नेंट स्कोर चले जाता है उनका। कुछ नंबर मार्क्स बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हम मार्क्स दे रहे, डेली मार्क्स दे रहे, वीकली मार्क्स दे रहे, लेकिन हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। इवन हम मेंटरशिप के वक्त बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया
हमारा हम डेली मॉक्स देते हैं तो हमारा स्कोर नहीं बढ़ता। मैंने पूछा आप एनालिसिस करते हो, तो नहीं करते हैं। यहीं पर तो बच्चे लैग आउट कर जाते हैं। Yeah, I think Right. first of all, students should stop doing daily mocks at the beginning. आप दो हाँ, तीन right, दिन right. मॉक दो ना, आप एक दिन मॉक दो, उसको 2 दिन एनालाइज करो. Like you don't have to give daily mocks. You have it's okay to give less mocks. You know, लास्ट में ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से पूछते हैं कि साल भर में कितने मॉक्स दिए हाँ, आपने. mock तो number what rate the mock number का? Don't fall for that. That's bullshit. Don't fall for it. It's okay if you give 20 mocks, 25 mocks. Just analyze it very consistently and learn from your mistakes. That's the more important thing. स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैं एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का देख रहा था, लाइव था वो, और एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर मैंने 103 मार्क्स दिए अभी तक, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? एंड आई वाज लाइक, मैंने तो इतने मार्क्स ही नहीं दिए। उसी टाइम मैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था कि बच्चों ने 103 मार्क्स दिए और मैंने तो बस 10-20 मार्क्स दिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? ये बच्चों के मन में फियर रहता है। मैंने ओवरऑल द होल जर्नी 60 to 70 मार्क्स दिए हैं। मोस्टली मैंने ये सुना है, जो भी टॉपर्स होते हैं तो दे आर 100, 105, ये मेरे सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही देते थे। बट मैंने एक चीज रियलाइज की कि आप कितने डीपली उसको एनालाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। लिखो, एक कॉपी बनाओ, उसमें सेक्शंस डिवाइड करो, हर मॉक का नंबर दो, मॉक पे नंबर होता है तो वो दो, एक सेपरेट बुक बनाओ मॉक एनालिसिस के लिए, एंड उसमें नोट डाउन करो कि कहाँ पे आपने गलतियां की है, एंड थ्रू द नेक्स्ट मॉक आप उस पैटर्न को अपने जहाँ पे आप गलत कर रहे हो उसको एनालाइज करो, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। हाँ, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के मॉक देते हैं, लाइक फॉर मी आई डिडंट हैव एनी ऑफलाइन कोचिंग नियर बाय, सो मैंने अपने सारे मॉक्स घर पे बैठ के दिए. सो मेरे साथ ये होता था कि मैं 2 hours कंसिस्टेंटली बैठना थोड़ा हार्ड हो जाता था बिकॉज एनवायरनमेंट वैसा नहीं था. सो आई यूज टू जस्ट लीव द मॉक्स इन बिटवीन, गो हैव सम स्नैक एंड देन कम बैक एंड देन डू द मॉक्स. स्टार्टिंग में मैं ऐसा करती थी एंड आई ट्राइड कि मैं 2 hours कंसिस्टेंटली बैठूं, बट आई डिडंट ट्राई हार्ड इनफ. सो मैंने मॉक्स तो दिए बट कंसिस्टेंट 2 hours बैठ के मॉक्स मैंने कम दिए. सो जो घर पे बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि प्लीज स्टार्टिंग से 2 hours कंप्लीट बैठ के आइसोलेशन में बैठ के मॉक दो, तो आपका ना स्टैमिना बिल्ड होगा. सो फिर आप बाद में आपके लिए वो 2 hours वेरी इजी हो जाएगा. या एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि Right. फर्स्ट मॉक में ही आप लोग पूरा एंड 2 वेरी घंटे इनिशियल बैठ फेज पाओगे। में ना, हाँ यस सर। हाँ, सेक्शंस दो, डीपीपीज दो, उसके थ्रू स्टैमिना बिल्ड करो, इंक्रीज करो, एंड फिर मॉक्स के लिए स्टार्ट करो। मतलब चलते रहने दो। आप एक टॉपिक कर रहे हो तो उसका सेक्शनल दो, उस सेक्शनल पे 40-45 मिनट्स जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन लेंथ है, क्वेश्चन नंबर्स है, उस हिसाब से तो वैसे स्टैमिना बिल्ड होगा एंड फिर 2 घंटे बैठने की आदत लग जाएगी। तो इज इट लाइक दैट कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए? No, it नहीं, depends डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन। या क्योंकि देखो and you customize na, because you can't solve a QT question, one question in 1 minute, but you can solve an English question in just 10 seconds or 20 seconds maybe. इवन जीके के So that क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गुड एट। yeah. जीके के क्वेश्चंस में हम मतलब आई गेस 23 क्वेश्चंस रहता है, 10-15 मिनट्स मैक्सिमम जीके क्वेश्चन के लिए आते हैं। हाँ, maximum, yeah. राइट। एंड एस्पिरेंट से गलती तो आप करते यहाँ हैं पे एक सेक्शन में टाइम सेव करके उसको दूसरे अपने हार्ड सेक्शन में पुट कर दीजिए। एंड Yeah. एस्पिरेंट से गलती करते हैं कि दूसरों से कंपैरिजन, लाइक का सेक्शन जीके का 15 मिनट में हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए। नहीं, अगर तुम्हें 20 मिनट लग रहा है तो ओके है, सबका अलग अलग ये स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, आप लोगों का yes. क्या कहना है उसको? हाँ, यस. अब जैसे क्यूटी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सो कुछ होते हैं मैथमेटिक्स में फास्ट लोग, उनका मे बी 15 या 20 मिनट्स में हो जाता है, बट मुझे भी समटाइम्स 25 मिनट्स से ऊपर लग जाता था. बट थिंग इज, मैं इंग्लिश, लॉजिकल एंड लीगल में टाइम सेव कर लेती थी, सो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता था वो टाइम. सो ऐसा नहीं ना कि आप कोई और कितने टाइम में सेक्शन सॉल्व कर रहा है वो मत देखो, आप ये देखो कि आपका ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट हो रहा है. टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज टाइम मत देखो, बट ओवरऑल 120 मिनट्स में आप कर पा रहे हो क्या नहीं वो देखो. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट. Okay guys, that's all for today's podcast. Thank you Swara, thank you Drupa for being there. Thank you for having us. it Yeah. was really engaging. I really enjoyed it. Thanks to Flat Air for this initiative. Yeah, I hope students benefit from this. And Yeah. they will. Yeah, they will. Best of luck guys for your future. Yeah. Thank Best you. of luck to everyone watching this podcast, and I hope you will be sitting at your favorite NLU seat after 1 year.
And you can do it, guys. Just be confident. Yes, जो भी देख रहे हैं Yes. अगले साल Trust in आपका yourself. इंटरव्यू लिया एक जाएगा. वो गाना है ना, continue. हाँ, आई रिमेम्बर सम लाइन्स. एक मुझे याद थी, शायद मेरे बुक में भी होगी, लेट मी सर्च कर इट, कि सबकी रूह है, टोक है, नोक है, जोक है, पर दिल में फिर भी हुक है ना. तो वो ऐसे मोटिवेशनल गाने सुनते रहो, थोड़ा एक ड्रामेटिक सिनेमैटिक चीज वही तड़का रखो लाइफ में. डोंट जस्ट गेट too much devoted in your study. Keep it balanced, but be loyal. That's it. Yes, not even motivational. You can, you can do hobbies, right? When you're preparing, you can Yeah. have some time for your hobbies. Don't just study, study, and study. Thank you so much, guys, Yeah. for your valuable time. Signing off with this. Okay. Bye, guys. Thank you. Bye bye.